So, hello, good afternoon, everyone. And I was waiting for a further more people to join because in the yesterday's class, I think 9 to 10 people have joined, but they have joined little later. So it would be, appreciable if you guys join earlier, okay, so that we can complete the syllabus faster and in the given time. Okay, so good afternoon, everyone. Yeah. So for those people who are looking at me for the new time of the, you know, पहली बार अगर मुझे कोई देख रहा है तो my name is Gazara Firdous and I'm one of the biology faculty in Avan. Okay. So um, before starting the today's session, I'm going to take the technical check. Just let me know if we have any internet problems or any sort of technical issues. Okay, it is one of the process in the protocol. हम इसको हमेशा follow करते हैं और अभी भी कर रहे हैं. Okay. चलो. So as you can see, there is no problem among the people. Okay, कोई problem नहीं है तो हम लोग end करते हैं poll and yeah. Good afternoon Sonali Pathak and good afternoon everyone. Great, great. Yes, good afternoon everyone from the YouTube also. Good afternoon, good afternoon. Okay, great. Let's move ahead. We are going to start the new chapter today for your kind information. So yesterday with the bioreactors and the downstream process, we have finished the chapter of biotechnology principles and processes. So what we have studied in the last class, we are going to apply it. देखो बेटा हमने तो सारा चैप्टर पढ़ लिया. प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, कौन सा स्टेप है, क्या है, कैसे है, सब पढ़ लिया. अब पढ़ के करे क्या, है ना? तो पढ़ने के बाद कहीं तो इसको अप्लाई करना है ना? So we have to apply the knowledge that we know about the biotechnology. So when we apply it on something, that becomes the application. Okay, जब apply करेंगे तो हमारे लिए use होगा. So apply करेंगे और हमसे हम फायदा लेंगे. We are taking the utilization of that application. Okay, so that applications and the wherever we are using the biotechnology as the desired thing for humans, all of those things we are going to study in this chapter. Okay, तो आज के chapter में वो सारा हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. So before starting to the today's chapter, I want you to answer a question. It is like a pre-knowledge question. आपको कितना पता है थोड़ा applications के बारे में, उसका एक basic hint मुझे मिल जाएगा if you are going to answer this question. Okay, चलो, great. So as you can see, this question says, which of the following is a natural genetic engineer of plants? Okay, there is a natural genetic engineer of plants, which is that, and there are options: yeast, agrobacterium, tumefaciens, E. coli, which is called as Escherichia coli, and mycoplasma. So, which is the option for this question you have to answer? I'm going to launch the poll for this question. Please make sure that you answer in the poll. Okay. Great. I can see people are answering in the chat box also. Question is not visible to you. एक second बेटा. Up. Now question is visible to you. Sonali Pathak and Sneha Ghosh. Now is it visible? Okay, great. Great, great, great. Now you can answer the question. Either you can write in the chat box and also you can answer in the poll.
Okay. So as you can see, many people have answered the question. As there are only three people and three people have answered, that's why I'm ending the poll. Okay. So let me end the poll and I'm sharing the results with you. So what are the results? You can see 67% people have chosen option B and only 33 people have chosen option C. ठीक है? सिर्फ 33 people ने option C को choose किया है. And let's stop sharing this. Okay, great. So now let's discuss what actually is the answer for this question. मतलब actually में answer क्या है इस question में, ठीक है? So here we are searching for the natural genetic engineer. Okay, I hope you are quite familiar with the term genetic engineer. Okay, so genetic engineer means what? देखो बेटा, आप लोगों ने जितना बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लिया है तो अब तक आपको पता हो गया देयर इज अ circular extra chromosomal double stranded kind of a you know extra chromosomal plasmid है ना. So there is a plasmid. Along with the plasmid as a vector we add the gene of interest. ठीक है, एक plasmid को हमने कोई बैक्टीरिया से extract कर लिया and we are adding the gene of interest to the plasmid. After you are inserting the gene of interest, or you can say that gene of interest might be anything, but you want that gene to proliferate, and from that proliferation of gene you are going to prepare any protein or any enzyme or any product. ठीक है, तो ये करने के बाद आपको क्या मिल जाता है? You will get a recombinant DNA. ठीक है, जो प्लास्मिड आपको मिलेगा, प्लास्मिड हैज गॉट इंजीनियर, मतलब जो एक नॉर्मल एक ऐसा प्लास्मिड था बेटा, ठीक है, अभी कैसा प्लास्मिड बन गया है, अभी ये कुछ ऐसा प्लास्मिड बन गया है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एडेड है. ठीक है, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एडेड है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम जेनेटिक इंजीनियर डीएनए करके कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज द जेनेटिक इंजीनियर डीएनए. Now, so which among these examples is the natural genetic engineer? As you can see, let us take the example of yeast. Yeast is nothing but, yeast is also called as Saccharomyces. Okay, Saccharomyces. ये जो organism है, we usually use this in the, baking items and for making wine. ठीक है, जो बेकरी आइटम्स होते हैं उसमें in the preparation of bread. ठीक है, सो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं इन द बेकिंग पर्पसेस. ठीक है, इन द बेकिंग और इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन, तो वहां पे यूज होता है. तो इसका कोई इतना जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिलेटेड नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द मेथड इन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, एक बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मेथड है वो भी. ठीक है, बट इट इज नॉट एनी वेरी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. देन लेट अस कम टू एन एग्जांपल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम फ्यूमिगेशन. देखो बेटा, in the last chapter you have studied something. What you have studied is simple. Okay, so you have taken the example. क्या example ले लिया था बेटा? If you are taking the plants, okay, if you want to modify the plants or if you want to genetically, engineer the plants, then what type of vector would you prefer? Okay, you tell me what type of vector would you prefer for the case of plants? This has been discussed in the last class. Okay, there is a special plasmid, we call it as TI plasmid. ठीक है, एक हम लोग प्लांट्स में ना डाइकॉट प्लांट्स के लिए एक स्पेशल प्लास्मिड यूज करते हैं, दैट इज टीआई प्लास्मिड. सो इफ यू आर आस्किंग व्हाट इज टीआई, टीआई इज नथिंग बट ट्यूमर इंड्यूसिंग. Okay, tumor inducing. So TI plasmid is nothing but tumor inducing plasmid. So this plasmid is present in this organism or in this bacterium. ठीक है, तो इस बैक्टीरियम में कौन सा प्लास्मिड है? तो इस बैक्टीरियम में हमको मिल जाएगा टीआई प्लास्मिड. ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीआई प्लास्मिड. So this TI plasmid is actually a natural genetic engineer. क्यों? क्यों? देखो, टीआई प्लास्मिड से नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. इफ यू आस्क मी क्यों, देखो बेटा, हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. ओके, इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इन द हेल्प ऑफ प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स के केस में हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसको कुछ ऐसे नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इस प्लास्मिड को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो फुलफिल कर रहा है ट्यूमर इंड्यूसिंग कैरेक्टर. ठीक है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कैरेक्टर है
ये हमको फुलफिल कर रहा है द वर्क ऑफ, ओके, द वर्क ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का काम है, वो काम हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग कैरेक्टर कर दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई टीआई प्लास्मिड को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज दे रहे हैं इन द प्लांट्स। ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ठीक है, सो एग्रोबैक्टीरियम म्यूटेशंस इज द बैक्टीरियम, ओके, दैट इज यूज्ड in the जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल ले रहे हैं, वो नेचुरल है टीआई प्लास्मिड। ठीक है, टीआई प्लास्मिड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लास्मिड है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियम एग्रोबैक्टर म्यूटेशंस फॉर द प्लांट्स। ठीक है, नाउ ई कोलाई, नो, ई कोलाई को हम यूजुअली एज अ रेसिपिएंट होस्ट यूज करते हैं। यूजुअली वी यूज एज द रेसिपिएंट होस्ट, मतलब यहाँ पे जो हम प्लास्मिड और जीवो आई को बना देते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हम डाल देते हैं एक होस्ट में, एंड वी अलाउ इट टू क्लोन, है ना, फॉर द क्लोनिंग प्रोसेस, ताकि हमको बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाए। तो इस क्लोनिंग के लिए जो हम होस्ट यूज करते हैं ना, यूजुअली वो जो रेसिपिएंट होस्ट है वो इकोलाई होता है। ओके, यूजुअली इट इज द रेसिपिएंट होस्ट। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन आर नॉट होल्ड्स गुड। ठीक है, ये सारे यहाँ पे होल्ड गुड नहीं है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव टॉट यू नाउ? आर यू क्लियर विद दैट? आपको क्लियर है वो सब चीजें? चलो चलो, ग्रेट ग्रेट, यस। नाउ, हाँ, so in this chapter of applications in biotechnology, you are going to use, oh, Sneha Ghosh, I didn't take the homework question. And actually I have forgotten which homework question I have given. Uh, uh, um, can you just write in the chat box which was the homework question? Because I totally forgot, because I'm not just taking for you guys, I'm taking for the other regions also. And I have given homework question for them also. And there is a different syllabus going on for each section. ठीक है, और else we'll do one thing, we'll discuss in the last। ठीक है, हम लास्ट में उसको होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, ग्रेट, यस, चलो। So in the biotechnology applications, अच्छा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है बेटा, लेट्स डिस्कस इट इन द एंड। ओके, ग्रेट, आई होप दैट इज ओके विथ यू। Okay, now, so in the biotechnology applications, you're going to see many applications, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। देखो, ये सारे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ठीक है, in your NCERT, these are the applications given, and you have to remember them, and you have to study in detail about all these applications. You have to study in detail. Okay, so first one is biopharmaceuticals, okay, and then therapeutics, diagnostics, genetically modified crops, okay, then processed food, bioremediation, waste treatment, energy production. If I explain you in brief about this also, it will take 1 hour definitely for me. So what I'm going to do, I'm going to just skip this part, and we will look at one above the one. Okay, one after the one, हम लोग applications देखते जाएंगे, and the first one which we are going to see is the benefits or applications in the field of agriculture. एग्रीकल्चर में कैसे बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पे, हम लोग पहले ना वो देखें। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, सो दिस आर ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एप्लीकेशंस। ठीक है, दिस माइट बी आस्क्ड इन द ऑप्शंस इन द एमसीक्यू आल्सो। चलो, ग्रेट, नाउ, या, oh my god, there is so much work going on, like this, like that. अरे ये रुकेगा कब? हाँ, चलो। Now, there are three critical research areas of biotechnology. So, इसका मतलब क्या है? आप मुझसे पूछोगे, मैम ये क्या है, मैम आप क्या समझा रहे हो वहाँ पे? तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं ये समझा रही हूँ आपको। ठीक है, so what I'm trying to say here is, in biotechnological work, there are actually three areas, okay, or the three research areas where there is a critical use of biotechnology. हम लोग यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज किए। तो वो क्या क्या है? देखो बेटा, फर्स्ट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट।
ठीक है, फर्स्ट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, एक कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, and this catalyst is doing what that we are going to see here. Okay, so catalyst provide, okay, or you can say, yeah, provide best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or a pure enzyme. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक माइक्रोब को, और यू कैन से वी आर यूजिंग एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अ माइक्रोब, ओके, और एनी एंजाइम। ठीक है, जो एप्लीकेशंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, along with the catalyst we are giving the optimal conditions। ठीक है, मैंने आपको बोला था कल की ऑप्टिमल कंडीशंस मतलब क्या होता है, here we are providing the optimal temperature, optimal pH, optimal conditions of humidity, temperature, सब कुछ बेटा। ऑप्टिमल का सिंपल मीनिंग होता है फेवरेबल। ठीक है, हम यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। ठीक है, अब एक कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए हमको एक फेवरेबल कंडीशन देना चाहिए ना। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। ओके, so you have brought a penguin, okay, penguin from any Antarctica, कोई cold region से आप penguin को ला लिए in the India, now penguin is in India। So if you want the people to come and see the penguin, and penguin अगर उसको डांस करके या फिर कुछ ऐसा फ्लैप करके अगर कुछ प्रेजेंट करे, आप उसका एक शो बना रहे हो, तो you have to give the adequate temperature and conditions for the penguin to survive, right? तो सरवाइव करवाना पेंगुइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उससे आप यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, जब वो लाइव रहेगा, एडिक्वेट टेम्परेचर में, पीएच में मेंटेन करेगा, तब वो शो करेगा, वो चलेगा फिरेगा, तब लोग दिखने आएंगे, तब आपको बेनिफिट होगा, राइट? सो हियर कैटलिस्ट इज व्हाट, ओके, कैटलिस्ट इज नथिंग बट इट इज द, यू नो, देखो नॉर्मली हम कैटलिस्ट इसको इसलिए बोलते हैं, ये इंड्यूस करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यू नो दैट। And in the biology, we know enzymes are the biocatalysts, है ना? Biocatalysts हमारे enzymes होते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है बेटा। हम यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में किसको यूज कर रहे हैं, कोई भी एक माइक्रोब को यूज कर रहे हैं या कोई भी एक एंजाइम को यूज कर रहे हैं। सो एज यू नो, एंजाइम्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट, है ना, उसको हम बायोकैटलिस्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक रिएक्शन करने के लिए एनर्जी कम लेता है, ओके, एनर्जी को कम यूटिलाइज करता है एंड बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है। ठीक है, सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग द कैटलिस्ट, एंड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ओके, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कैटलिस्ट इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड अर्लियर। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट वी आर यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। ठीक है, एंड इस कैटलाइज, यू नो, कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग। मतलब किसी भी तरीके से हम ऑप्टिमल कंडीशंस देना जरूरी है, कोई भी तरीका रख लो। देखो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कौन सा जो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना है कि क्राइटेरिया याद रख लो। हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्टिमल कंडीशन सो दैट द कैटलिस्ट कैन एक्ट इट्स बेस्ट। ठीक है, सो ये सब हो जाने के बाद वी आर डूइंग द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस और द टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब तो हो गया था ना, हम लोगों ने कल देखा था बायो रिएक्टर्स में हम लोगों ने लार्ज स्केल में बना लिया था, है ना। इन द लार्ज स्केल वी हैव प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट, एंड आफ्टर द formation of large scale product, then we have to process it, and for the processing what we have done, we have separated, okay, we have purified, we have added the preservatives, we have done many things। तो ये सब करने के बाद लास्ट में हमको मिला था प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह हम लोग यहाँ पे कोई माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमल कंडीशंस दे रहे हैं एंड फिर उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सो दैट एट द लास्ट कैन गेट द प्यूरिफाइड प्रोटीन और एनी कंपाउंड दैट वी आर डिजायरिंग फॉर। ठीक है, तो ये सारे एरियाज में रिसर्च हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अपना कोई मैंने कल एग्जाम्पल लिया था ना इंसुलिन का। अभी इंसुलिन के लिए कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से एंजाइम्स आपको यूज करना पड़ेंगे सो दैट की रिएक्शन जल्दी हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया, वहां पर रिसर्च हो रहा है। एक तो कौन से एंजाइम के लिए कौन सा ऑप्टिमल कंडीशन देना है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और जल्दी काम कर पाए। ठीक है, तो ये तीन है एरिया ऑफ रिसर्च जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमेशा रिसर्च
होता रहता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज क्लियर, ओके। चलो, लेट्स मूव अहेड देन। ग्रेट, oh my god, so beautiful. So now we are going to understand the first part of the application, that is application in agriculture. हम पहले क्या देखेंगे बेटा, agriculture में किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर पा रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलो, let's move ahead. Great. Now comes the empty page. मैं यहाँ पे एक empty page ले लेती हूँ. So here I am going to write something. So from the previous chapter, you understood that there are many steps in the process of biotechnology. एक तो isolation कर दिया, फिर आपने DNA को कट कर दिया, इतना सब कुछ हुआ एंड आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ना, इसको कैसे अप्लाई करें वो हम लोगों ने देखा था और आगे भी देखते रहेंगे इन दिस चैप्टर. So here you have heard about the GMOs, I guess. ठीक है, आप अगर पूछोगे कि मैम GMOs क्या है, तो बेटा GMOs is a very simple, okay. GMO हम इसको कहते हैं that is genetically modified organism. Okay, genetically modified organism. Now I would say जो हम लोगों ने एक प्लास्मिड बनाया था, हम लोगों ने एक प्लास्मिड ले लिया था, इसके साथ हम लोगों ने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया था, है ना। वी हैड टुक सम जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो अभी हम लोग इसको ना यूज करेंगे एंड वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस. एंड आई हैड टोल्ड यू दिस इज व्हाट, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. So this recombinant DNA, you are inserting this in a host, and in that host you can say it is a E. coli. ये हो गया E. coli. तो अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि this E. coli is the genetically modified organism. Can I say that it is a genetically modified organism? Okay, can I say that? ठीक है, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियम ले ली हूँ, ठीक है, एंड देयर इज अ न्यूक्लियोइड हियर, ओके, एंड देयर इज अ प्लास्मिड. सो इन दिस प्लास्मिड व्हाट वी हैव आवर recombinant DNA. वी हैव द recombinant DNA, ठीक है, ये हो गया GMO. वी कॉल दिस एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने प्लास्मिड को डाल दिया. ग्रेट, good to go. So ये होता है genetically modified organism. Similarly, there is another term that I want you to introduce is the GMC. So what is GMC? GMC का मतलब genetically modified crops. Okay, so this genetically modified crops have been used in the field of agriculture. तो आप अभी मुझे पूछोगे, मैम क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग genetically modified crops को? देखो बेटा, our India is actually securing organs से it is obtaining the income from the agriculture. मतलब बहुत सारा पोर्शन में जो इनकम आ रहा है इंडिया के लिए, ठीक है, वो एग्रीकल्चर से हो रहा है. क्यों? हम लोग यहाँ पे उगाते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, हम लोग यहाँ पे हार्वेस्टिंग करके कुछ यील्ड जनरेट करते हैं और उस यील्ड को हम लोग बाहर की कंट्रीज को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट करके एक तो इनकम जनरेट होगा, एक तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और यहाँ के लोगों के लिए and the people who are living in the India, for them also you are making the food. Ultimately, plant is the food source, right? If these crops are well developed, if they don't have any pathogen infection, if they don't have any diseases and yield भी बहुत अच्छा हो रहा है, so it is a good thing, right? It is a good thing. So that is why we are doing this. We are making the modification in the genetics of the crops or in the plant. ठीक है, हम लोग वो भी कर रहे हैं. तो ये जो हम लोगों ने किया ना, ये जो हम लोगों ने किया, ये करने से पहले, ठीक है, जब जीएमसी बनने से पहले एक चीज हुई थी, ओके, उसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. देयर वाज समथिंग हैपेंड एंड वी कॉल दैट एज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है. सो आई वांट यू टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. सो इन द प्रीवियस ईयर्स, मतलब कुछ साल पहले ना, लोगों का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं था. देयर वाज नो फूड, देयर वाज नो ईट, देयर वाज नथिंग हियर, ठीक है. जो भी था वो बहुत कम पड़ रहा था. इट वाज वेरी लेस, इट वाज इनसफिशिएंट. देन व्हाट हैपेंड, देयर वर टू पीपल
Okay, so those two people actually did the very beautiful job in the field of agriculture, and we call them as Norman Borlaug. Okay, ये जो person है ना Borlaug, इस बंदे को हम बोलते हैं the father of green revolution. ठीक है, इसको हम बोलते हैं father of green revolution. ठीक है, ये पूरे all over वर्ल्ड में किया था. एंड इन द इंडिया देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड एज स्वामीनाथन. ठीक है, स्वामीनाथन एक बंदा था, तो इसने इंडिया में इसको अप्लाई किया. अभी आप पूछोगे मैम व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, यू सेड हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, लोगों के लिए यील्ड बढ़ गया. ठीक है, वो प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें हम विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था बेटा, व्हाट वी डिड वाज सिंपली we did the high yield harvest. हम लोगों ने क्या किया, high yield harvest. ठीक है, high yield harvest किया. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आ गया था हाई yield harvest. और हम लोगों ने बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज किया. ठीक है, पेस्टिसाइड यूज करने से क्या होता है बेटा, देखो अल्टीमेटली वॉट एवर द क्रॉप यू ग्रो, देर आर सम इंसेक्ट्स, देर आर सम पेस्ट्स, एंड देर आर सम मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस द डिसीजेस. और इन चीजों को किल करने के लिए वी वांट पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, सो पेस्टिसाइड हो गया, कोई हर्बिसाइड हो गया. ठीक है, ओके, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड टू किल द वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना क्रॉप्स के बीच में वो. एंड देन इंसेक्टिसाइड्स. ऐसे अगर लिखते जाऊं तो बहुत सारे साइड्स. ओके, साइड मींस व्हाट, सुसाइड. सू मींस सेल्फ, साइड मींस ओके किलिंग. तो यहाँ पे पेस्ट किलिंग, हर्ब किलिंग, इंसेक्ट किलिंग, तो ये सारे हम लोगों ने साइड्स क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. हम लोगों ने यूज किया बहुत सारा केमिकल. तो केमिकल्स को यूज करके हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स बना लिए, इंसेक्टिसाइड्स बना लिए, एंड हमारे क्रॉप्स को हम लोग स्प्रे करने लगे. वी स्प्रेड एवरीवेयर. Okay, everywhere we sprayed the chemicals. So because of this, what was happening, our lands were getting polluted. So क्या pollute हो रहा था बेटा, हमारा जो precious land है वो pollute हो रहा था. And because of the pollution, there was a formation of, you know, eutrophication. When I say eutrophication, what exactly is eutrophication बेटा? जब बारिश आता है, ठीक है, आपका लैंड में पोल्यूशन है एंड रेन इज अकरिंग. तो व्हेन रेन केम इट विल डेफिनेटली एरोड द सॉइल. सॉइल भी पानी में जाके गिरेगा. ठीक है, जब पानी में जाएगा तो इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे केमिकल्स जा रहे हैं. तो वो पानी आप लोग पियोगे, कोई एनिमल पिएगा, फिशेस यूटिलाइज करेंगे तो सारे मरेंगे. इसके साथ होता है यूट्रोफिकेशन व्हिच आई टोल्ड यू. दैट मींस इंक्रीज ऑफ एनी मिनरल और इंक्रीज ऑफ एनी केमिकल, इट लीड्स टू द ब्लूम ऑफ algae. ठीक है, इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सब ना लेक्स में algae ज्यादा वहां पे ग्रो हो जाएंगे एंड इट लीड्स टू द लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इन simplified version, what I can say, with this chemicals there is happening pollution in the soil and also in the water and some amount of in the air also. ठीक है, because of the use of chemicals. अब इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था बेटा, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. देखो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को यूज कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, और ये फर्टिलाइजर्स किस तरीके से थे, ये फर्टिलाइजर्स कैसे थे बेटा, these fertilizers were rich in NPK. ये मतलब N क्या होता है बेटा, N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है, सो नाइट्रोजन रिच थे, फॉस्फोरस थे, पोटेशियम था. ये सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द मैक्रो मिनरल्स होता है ना, एक प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सारा फुलफिल कर रहे थे हम लोग फर्टिलाइजर्स से. एंड दीज फर्टिलाइजर्स वर आल्सो केमिकल्स. ठीक है, मतलब एकदम फूल रहा था, फल रहा था, सब अच्छा हो रहा था. पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये सारे केमिकल्स थे बेटा. ठीक है, सो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो ऐसे ना सारे केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे थे. एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, तो जो भी है, ठीक है, सब. नाउ वी हैड टू ओवरकम दिस. मतलब एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम अगर लॉन्ग रन की देखें ना बात, so chemicals of excessive use of chemicals were polluting the soil, polluting the water, and also यहाँ पे भी chemicals थे, वो भी problem cause कर रहे थे, यहाँ पे भी pollution. So we wanted to overcome this. Okay, we wanted to overcome this. That is why we started growing the organic harvest.
और कैन से ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ओके, आई विल राइट हियर वी डिड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सब कुछ ना जो नेचुरल है उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कॉम्पोस्ट, ओके, कंपोस्ट हो गया, मेन्यूर हो गया, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज आल्सो दिस कि ये सारा एक्सपेंसिव हो जाता था। हर जगह पे हम लोग ना अभी मेन्यूर बनाओ, मतलब गोबर जो होता है ना, सो अभी रियल जो यूरिया होता था उसको यूज कर दिया, ठीक है। सो दैट काउ डंग यूज कर दिया, फिर शीप डंग यूज कर दिया, तो ये सब ना कितना बोल के आप यूज करोगे। ओके, इट वाज प्रेजेंट इन वेरी लिमिटेड अमाउंट्स। तो हमको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि इनसफिशिएंट अमाउंट हो रहा था इस फार्मिंग के लिए, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा था, नो पोल्यूशन नथिंग, बट इट वाज एक्सपेंसिव आल्सो, ठीक है। वो कहाँ पे लाए भाई, अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए, तो इनसफिशिएंट अमाउंट, एंड इसके लिए वेट करना पड़ता है, जब नहीं है तो नहीं है, लेकिन तब तक हमारा प्लांट ना ग्रो होकर हार्वेस्ट के टाइम पे आ जाएगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में होते थे। इसीलिए इन चीजों को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने यूज किया जीएमसी का, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्रॉप को ही ऐसे मॉडिफाई कर लिया ताकि हम लोगों को इन पेस्टिसाइड्स की या इन फर्टिलाइजर्स की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे इसको मॉडिफाई कर, समझ आ रही है आपको बात में क्या समझा रही हूँ। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज गुड बट लॉट ऑफ केमिकल्स वर क्रिएटिंग द पोल्यूशन एंड देन वी स्टार्टेड द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने बायो फर्टिलाइजर्स यूज किया, बायो कंट्रोल यूज किया, बायो पेस्ट यूज किया, बायो इंसेक्टिसाइड यूज किया, सब बायो 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 एंड नेचुरल भी यूज, बट स्टिल इट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, इट वाज insufficient and kind of expensive. So that is why we have entered the GMC, ठीक है, genetically modified crops, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके लिए अप्रोच कर ना। So there are three options for increasing the food production which I have already told you. मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना, वही यहाँ पे दिखाया है, the same thing is shown here. So first option is what, agrochemical based engineering, जो हुआ था, सॉरी, एग्रीकल्चर जो हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से। सो ग्रीन रेवोल्यूशन का हम लोगों ने यूज किया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है ना, वी आर स्प्रेइंग द केमिकल्स, ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, बट इट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई वी हैड टू लुक फॉर द ऑर्गेनिक कल्चरिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या हुआ, हम लोग मैन्यूर यूज करें, काउ डंग यूज करें, डंग यूज करें, ठीक है। सो दैट वी स्टार्टेड यूजिंग, बट स्टिल इट वाज insufficient. Then what we did, we have planned for using the जेनेटिकली इंजीनियर। देखो बेटा, अगर हमने उसके जीन्स में, प्लांट में जो जीन्स होता है उसको ही मॉडिफाई कर लेंगे, अगर उसको ही हम लोग ना पेस्ट क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड के जो कैरेक्टर है वो अगर उसमें डाल देंगे, तो हमको बाहर से एक्सटर्नल पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की नीड नहीं होगी, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने की नीड नहीं होगी। नाउ दिस प्लांट इटसेल्फ इज रेजिस्टेंट, okay, our plant become resistant for insects, for pests, okay, for any pathogen. So we are normally creating here, okay, resistant, okay, we are making the resistant yield अथवा resistant crops, हम यहाँ पे resistant crops बना रहे हैं ताकि हमारे crops बहुत अच्छे से बने और कोई भी pathogen problem create ना हो, ठीक है। And still today, even to this day, this is the very effective, okay, this is the very effective form of agriculture where the food production is happening in a good amount, high yield हो रहा है, high quality हो रहा है, सब कुछ हमको अच्छा अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना। पीछे चला गया। See, here they are saying genetically modified organisms are nothing but these are the plants, bacteria, fungi or animals whose genes are altered by manipulation. मतलब उनके genes में हम लोगों ने जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको ऐड कर दिया, या फिर कुछ तो हम लोगों ने मॉडिफाई किया, कुछ तो चेंज किया, so that we are changing the genetics of that organism, and those organisms, sorry, are called as GMOs. Okay, so now let's move ahead. Here you are going to see what are actually the advantages. ठीक है, यहाँ पे advantages क्या है वो हम देखें।
मैंने अभी आपको बोल दिया कि हाँ भाई हम जेनेटिक मॉडिफाई करेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, बट एक्चुअली में एडवांटेजेस क्या है इसके, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट एडवांटेज इट इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो यू नीड नॉट टू वरी। द फर्स्ट वन इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, okay, pest resistant crop. So that means what? We don't want to spray the pesticide over crop. हमको pesticide को spray करने की need नहीं है, हमारे crop के अंदर ही ability है। Our crop has the ability of pest resistance, ठीक है, ये ability हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। इसका best example होता है BT cotton, okay, the best example is BT cotton products, okay। Now the second advantage is tolerance. So you can ask me, what do you mean by tolerance, ma'am? If the yield अथवा crop, if the plants or crops, they have, they have any abiotic stress. Abiotic stress means what? समझो कि आप लोगों ने कहीं पे wheat डाल दिया है, ओके, तो एक wheat का खेत है, तो उस wheat के खेत में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो सारा पानी हो गया एंड आपका क्रॉप ना खराब हो गया, ठीक है, ये एक एबायोटिक स्ट्रेस है। या फिर व्हाट हैपन, देयर इज अ वेरी हाई विंड करंट, ये जोर हवा आई ना कि सारा क्रॉप जो है वो निकल गया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इनको बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। सो अगर की हमारे जो जीएमसीज हैं और वी कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दे हैव द टॉलरेंस टू रेजिस्ट दिस एबायोटिक स्ट्रेस। तो हमारे प्लांट्स को क्या है बेटा, टॉलरेंस है टू रेजिस्ट द एबायोटिक स्ट्रेस। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो उसका स्ट्रेस को हम लोग ना ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, टॉलरेंस टू रेजिस्ट द एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। आगे, so now there is an another third point, this is called as prevention in early exhaustion। मतलब क्या होता है ना बेटा, फर्टिलिटी जो होती है ना प्लांट की, वो जैसे हम यूज करते रहते हैं, वहां पे कुछ आप लोगों ने एक टाइम में वीट डाल दिया, फिर कॉर्न डाला, फिर पैडी डाला या फिर कुछ भी डाला, तो फर्टिलिटी कम होते जाती है सॉइल में। So when there is less fertility or less minerals in the soil, then it is not good for the plants, okay। But if you use the GMCs, then what happen, you are providing the good minerals also, and then there is maintain, ठीक है, मिनरल्स जो है वो मेंटेन हो जाते हैं हमारे सॉइल में ही, ठीक है, सॉइल में मेंटेन होते हैं। और अब इस टाइम आपने पैडी डाला है, तो नेक्स्ट बैच में आप कॉर्न डालोगे तो कॉर्न को भी फर्टिलिटी मिलेगी, कॉर्न के बाद आप अगर कुछ और डालोगे, ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से फर्टिलिटी मिल जाएगी। सो व्हाट एक्चुअली इज दिस, सो इट इज प्रिवेंशन, ओके। सो लेट मी राइट हियर, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट मतलब खाली हो जाना, ठीक है। सो अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ fertility, okay, in soil, ठीक है, अर्ली एग्जॉस्शन ये हो गया। सेकेंड क्या होता है बेटा, रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं ना, so when we are doing the harvest, at that time there are kind of very क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। अगर जब हम इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज करते हैं, तो ये भी हम लोगों को देखेगा कि रिडक्शन होगा, okay। So there is also reduction in post harvest losses, ठीक है, post harvest losses। देखो बेटा, these are all given in your NCERT and you have to remember it as it is, जैसे है उसको ऐसे याद करना है, ठीक है। and here we are increasing the nutritional value, okay, increasing the nutritional value of food, okay, फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। देखो कितने सारे हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है जस्ट बाय यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको यूज करना है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, whenever you grow, एक कोई भी आप फॉर्म देखो ना, तो चलो समझो कि पैडी है, और पैडी के बीच में अभी बहुत सारे बीज निकल के आते हैं, ग्रास आया, अनवांटेड पार्थिनियम प्लांट्स आ गए, या फिर जो हमको नीड नहीं है वैसे जो प्लांट्स आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं वीड्स, ठीक है। सो दोज अनवांटेड हर्ब्स और दोज स्मॉल स्मॉल प्लांट्स व्हिच आर अकर्ड इन द फार्म,
ठीक है, अब हमारे कोई फील्ड में है तो इसको किल करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारा मिनरल, न्यूट्रिशन, वाटर सब ये वीड्स ले लेते हैं, लेकिन हमारे क्रॉप्स के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू किल द हर्ब्स। सो फॉर दैट वी यूज हर्बिसाइड्स। ठीक है, हम लोग यूजुअली हर्बिसाइड यूज करते हैं। बट अगर हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ठीक है, हम अगर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एबिलिटी हमारे प्लांट्स को दे देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से फूले फलेगा। ठीक है, सो these ability herbicides do not harm the GM crops। ठीक है, तो ये भी एक होता है, सो हम बोलते हैं इनको वीड किलर्स, वीड किलर। ठीक है, दिस इज another point। And the last point is finding the alternative resource for industries, to industries, finding the alternative resource to industries। मतलब देखो बेटा, हम लोग ना इतने इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, कितना बड़े बड़े हमारे, अब देखोगे ना कितने बड़े बड़े चिमनीज होते हैं, कुछ वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब अभी आप ना कुछ केमिकल बना रहे हो, चलो समझते हैं कि यू आर मेकिंग अ पेस्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड बनाने के लिए एक केमिकल यूज हो रहा है, और आप इतना अमाउंट में नहीं बना रहे हो, यू आर मेकिंग दैट इन अ वेरी लार्जर अमाउंट। तो उसके लिए लार्जर अमाउंट करने के लिए आपको बड़ी फैक्ट्री चाहिए, कोई इंडस्ट्री चाहिए। तो इससे अच्छा है हम क्या करें, लैब में बैठ के बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड यूज करें। ठीक है, कुछ यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया और प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, वी आर इंजेक्टिंग दैट इन अ प्लांट एंड नॉर्मल फार्मिंग हो रही है। सो दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिसोर्स फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, चलो। So there is an another concept, we call it as pest resistant। देखो हम लोग ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो यूज कर रहे हैं, इससे एक चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग ना प्लांट्स को एबिलिटी दे रहे हैं फॉर फाइटिंग द पेस्ट। ठीक है, पेस्ट में कौन आएगा बेटा, देखो पेस्ट इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स, लाइक इंसेक्ट आ गया, कोई फ्लाई आ गया, कोई बग आ गया, कोई वॉर्म आ गया। ठीक है, तो कुछ भी है बेटा, सो एक एंट हो गया, any pathogen or any organism which is causing a trouble in our plant, तो उसको हम बोल देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो our plants have the ability, okay, ability to resist those pests। ठीक है, हमारे पेस्ट को रेजिस्ट करने की एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके, सो GMC plants have built the ability of resistance for pests। ठीक है, for pests। तो इससे क्या होगा, we can decrease the use of chemicals। So because of this we can see there is a drastic decrease in the use of chemicals। ठीक है, जो हम केमिकल्स यूज कर रहे थे ना, द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, हर्बिसाइड्स, तो इन सब से हमको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे प्लांट ने ही उसकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी है। ओके, सो ये सारे जो इंसेक्टिसाइड्स थे एंड ये सारे थे ना हर्बिसाइड्स, ठीक है, हर्ब्स को किल करने का, एंड देन पेस्टिसाइड्स, तो इनके खिलाफ हम लोगों ने क्या किया, एक्शन कर दिया, एंड आवर प्लांट्स हैव द एबिलिटी, ओके, दे themselves have the ability। ठीक है, सो यहाँ पे एक और एक पार्ट आता है बेटा, कॉल्ड एज RNA इंटरफेरेंस, दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट। ठीक है, मैंने बस एक बेसिक आइडिया दिया है आपको, तो हम इसके बारे में इन डिटेल कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यू कैन सी द पॉइंट्स। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्ट्स एज बायोपेस्टिसाइड। हम लोगों ने आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है, प्लांट ही एक बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज कर रहे हैं, सो इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है। ओके, एंड इनके एग्जांपल्स हैं बीटी कॉटन, सॉरी बेटा, एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक नहीं है,
मुझे बहुत इचिंग होती है थ्रोट में, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, ठीक है, टमेटो, पोटेटो, सोयाबीन, ये सारे एग्जाम्पल। ठीक है, सो नाउ वी वांट टू स्टडी समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो, ओके, व्हाई नॉट। See, here we are talking, yeah, that these are the points that are given in your NCERT. So you have to remember them. Don't worry, ये आपके NCERT में आपको मिल जाएंगे बेटा, and we will share the notes. हम notes share करेंगे, so you don't have to worry. Now we are actually falling late, तो थोड़ा हम लोग start कर लेते हैं बेटा. Okay. So now we are going to see about the BT cotton. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? So first of all, BT means what? This is a bacterium called as Bacillus thuringiensis. Okay, तो स्पेलिंग में थोड़ा देख लेती हूँ क्योंकि यूजुअली हम यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, Bacillus thuringiensis. So this is the, एक सेकेंड, based on the binomial nomenclature, T को तो small होना चाहिए. Bacillus thuringiensis. ठीक है, so this is a bacterium, कि ये एक बैक्टीरिया है, and this bacteria has the ability, has the special ability. तो वो special ability क्या है मैं आपको बताती हूँ. That special ability is this. ठीक है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म एक डिफेंस मैकेनिज्म है. ठीक है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एंड दिस डिफेंस मैकेनिज्म हैज क्रिएटेड, ये डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हुआ है अगेंस्ट द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये क्रिएट हुआ है. देखो बेटा, यूजुअली क्या होता है, एक बीटी का प्लांट है. ठीक है, सो बीटी को, सॉरी बीटी का प्लांट कह रही हूँ मैं, कॉटन का प्लांट है. ओके, देयर इज अ कॉटन प्लांट, एंड व्हाट हैपन, देयर आर इंसेक्ट्स व्हिच ईट्स द कॉटन. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता था, कभी कभी जब अगर इंसेक्ट, क्या कहते हैं, इंसेक्ट को प्लांट नहीं मिला या फिर कॉटन का प्लांट अवेलेबल नहीं था, तो इट यूजुअली फीड्स ऑन बीटी. ओके, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता था. तो ये बैक्टीरिया बहुत परेशान था कि कैसे इस इंसेक्ट से बचा जाए. ठीक है, so that is why it created the defense mechanism. So what it has created means, इसने एक टॉक्सिन बना लिया, उस टॉक्सिन को हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन. ठीक है, इसने एक टॉक्सिन बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन. नाउ दिस एंडोटॉक्सिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन. ठीक है, ये जो टॉक्सिन है इसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है, ये एक प्रोटीन है, उसको हम सिंपली बोल देते हैं क्राई प्रोटीन. ठीक है, हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं क्राई प्रोटीन. ठीक है, सो ये जो क्राई प्रोटीन है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव. ये कैसे है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हियर इज, ये जो इनएक्टिव फॉर्म का प्रोटीन निकल रहा है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ जीन, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज क्राई जीन. ठीक है, ये जो जीन है ये क्राई जीन, इसको हम बोलते हैं. सो यू कैन आस्क मी, मैम व्हाई देयर इज अ नेम कॉल्ड क्राई. सो ये क्राई इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन. ठीक है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन है. ओके, इट इज क्रिस्टलाइन प्रोटीन. नाउ, सो ये जो प्रोटीन कहाँ से रिलीज हो रहा है, क्राई जीन से हो रहा है. नाउ ये इनएक्टिव इनिशियली रहता है, एंड इट विल गेट एक्टिव वंस इट रीचेस द गट ऑफ द इंसेक्ट. ठीक है, अभी समझो ये क्राई जीन क्या है, ये अब यहाँ पे है. ठीक है, एक कॉटन के बट को है या फिर एक कॉटन के फ्लावर पे है. ठीक है, तो अभी उसको इंसेक्ट आके खाएगा, तो इंसेक्ट जब आके खाएगा तो उसमें प्रोटीन है बट इनएक्टिव फॉर्म में है. जब वो जाएगा इंसेक्ट की गट में,
जब वो जाएगा इंसेक्ट के गट में, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्टिव, वहां पे जाके एकदम से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब एक्टिव बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्या है, इट विल क्रिएट द होल और पोर्स इन द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, इट विल क्रिएट द लाइसिस ऑफ द मिडगट और अल्टीमेटली पोर्स क्रिएट करता है इन द मिडगट, इन द मिडगट ऑफ इंसेक्ट, मतलब एक इंसेक्ट के गट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट को प्रॉब्लम होगा, पेट में गड़बड़ी होगी, पेट क्या होगा, लाइसिस के मारे फट जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, तो इंसेक्ट माइट ईट द बैक्टीरिया का प्रोटीन, इट विल ईट। ओके, ये जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन को वो इंसर्ट कर लेगा अंदर, लेकिन व्हेन इट रीचेस द गट, सो गट में एक्चुअली एक टाइप का पीएच होता है, दैट इज अल्कलाइन पीएच। सो ये एक्टिव कब होगा, व्हेन देयर इज अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच में एक्टिव होगा। और ये अल्कलाइन पीएच कहाँ पे है, गट ऑफ इंसेक्ट में है, तो वहां पे लाइसिस होगा एंड पोर्स क्रिएट हो जाएंगे गट में एंड इवेंचुअली दैट इंसेक्ट विल डाई। ठीक है, दैट इंसेक्ट विल डाई। सो दिस इज वन फॉर्म। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चला कि Bacillus thuringiensis is a bacterium and it has the defense mechanism against the insects. तो हम क्यों ना इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हमारे प्लांट के अंदर इंसर्ट करें, so that our plants also have the defense mechanism against insect, and इसी के वजह से हमको बाहर से इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो देयर विल बी नो नीड फॉर स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, हाउ एक्चुअली इट इज हैपनिंग, इट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मैंने यहाँ पे कॉटन का प्लांट है समझो। ठीक है, यहाँ पे कॉटन का प्लांट है, there is a cotton plant here. Okay, there is a cotton plant, and in this cotton plant you are introducing something, and that something is nothing but the bacteria. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बैक्टीरियम, एक्चुअली सारा बैक्टीरिया नहीं डाल रहे हो आप, बैक्टीरिया के अंदर जो जीन था ना, जो कॉज कर रहा था क्राई प्रोटीन, दैट एंडोटॉक्सिन, उस जीन को हमने ले लिया। नाउ दिस जीन इज अलाउड टू इंसर्ट इन द कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट के अंदर ये क्राई जीन आ गया, so then we can call this cotton as the transgenic plant, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अब आप पूछोगे मैम ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्राई जीन है। सो इस क्राई जीन से हमको मिलेगा क्राई प्रोटीन। ठीक है, वो क्राई प्रोटीन हमको हेल्प करेगा विथ फाइटिंग विद द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब आपको एक सवाल मैं पूछती हूँ। ठीक है, सो ये क्राइजीन जो है ना, इसको हम विच वेक्टर में डाल रहे हैं, मतलब कौन सा वेक्टर। और हम यहाँ पे देखो, इफ यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स, तो हम लोग प्लांट के लिए वेक्टर यूज करते हैं टी आई प्लाज्मिड। वी यूज द वेक्टर कॉल्ड एज टी आई प्लाज्मिड। तो ये जो टी आई प्लाज्मिड है, इसमें हम क्या करेंगे, जीओ आई को इंसर्ट करके हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, एंड ये डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन में, है ना। सो दिस आई हैड टोल्ड यू, एंड दिस टीआई प्लाज्मिड इज नथिंग बट द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, एंड ये जो प्लाज्मिड है हमको कहाँ से मिला था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक बैक्टीरिया है, इससे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था, है ना। फ्रॉम दिस वी हैव एक्सट्रैक्टेड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो इतना आपको समझ आ गया बेटा। So now what we can say, so this BT cotton plant is the bioinsecticide. अभी इसको हम बोल देंगे bioinsecticide। क्यों, अभी हमारा BT कॉटन को इंसेक्टिसाइड बाहर से स्प्रे करने की नीड नहीं है, क्योंकि now our cotton plant have the gene, cry gene, with the help of that cry gene it can produce the cry protein, and that cry protein is inactive। वो पहले इनएक्टिव होता है, and it will get active when it gets into the gut of the insect।
वो जब इंसेक्ट के गट में जाएगा तो तब जाके एक्टिव होगा एंड उसके मिड गट में पोर्स क्रिएट कर देगा, सो दैट क्या होगा, उसका जो पेट है वो फट जाएगा एंड द इंसेक्ट विल डाई। Okay, so this is the simple terminology में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, तो वो कौन से एग्जांपल्स हैं, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी ब्रिंजल है, तो ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली मैंने प्लान बहुत क्लियर किया था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, विल कंप्लीट इट टुमारो। हम इसको आगे कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इतना ही हुआ है आज के लिए। सो देयर इज अ homework for you. So this is your homework. You have to read the NCERT, and if you have any questions, you can ask. Actually, we are falling late. I think today I went little slower. है ना, मैंने थोड़ा स्लो गया, तो कोई बात नहीं, कल हम लोग स्पीड पिकअप कर लेंगे। एंड देयर इज अ NPS हियर, so you can rate or you can feel, जैसे आप फील करते हो उस तरीके से आप मुझे रेटिंग दे सकते हो। डू यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस हियर। थैंक यू स्नेहा घोष, थैंक यू सो मच। एक्चुअली दिस टाइम नो, मुझे टाइम लगता है कि बहुत कम टाइम मिल रहा है। अगर ज्यादा टाइम मिलेगा ना तो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी। ये होता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम फास्ट चले जाते हैं, बताओ बाद में आपको समझ नहीं आया, तो इसीलिए धीरे से आराम से जाएंगे, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। देखो, मुझे क्वेश्चंस देने के लिए टाइम नहीं बचता लास्ट लास्ट, है ना, एंड उसके ऊपर मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम ज्यादा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द ग्रुप आल्सो, ग्रुप में भी आप डाउट डालो बेटा, मैं आंसर करूंगी, ठीक है, वो बेस्ट वे है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई हैव टू लॉग इन।